Good morning, everyone. In previous class, we have discussed about ray optics, different laws of refraction, and some other topics related to refraction and refractive index. We have skipped the reflection topic because it is not in our course this year, and you also know about reflection very well. So, here we are discussing about refraction. So our next topic is refraction through a rectangular glass slab. You must have seen the refracting glass slab in your lab. Alright, so how a glass slab works and how the refraction occurs through a glass slab. What is lateral shift? This we are going to discuss today. So firstly, consider a rectangular glass slab PQRS. This is a rectangular glass slab. Alright. A ray AB is incident on the face PQ. This is face PQ, R and S. A ray is incident. This ray, you can say that it is AB ray. Alright. Now, from where it meets the interface, make a normal. If it is making angle I1, then I1 is our angle of incidence. I1, this angle will be our angle of incidence. Now, as if there was no change in the path of the ray, then it becomes straight. अगर ये पाथ ना होता तो ये रे कैसी रही होती? ये स्ट्रेट ऐसे जा रही होती. मेक दिस लाइन. अगर इसका कोई भी पाथ चेंज ना हुआ होता. नाउ एस it is medium 1, it is medium 2, consider it as air, and glass slab is made of glass, so it is glass. Now the ray will be refracted with any other angle because it is rarer, it is denser, so ray will move towards the normal. So if I say the ray is moved like this only, so it becomes point C where it meets. Now make a normal here because it is again an interface of two media. So this normal, if the ray is making angle I2 here it is making angle I2. ये हम बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पे consider this refraction angle as small r1. Now here it is making angle I2. अब इसके बाद क्या होगा? ये डेंसर से फिर से रेयरर में जा रही है. Then it is moving like this. Alright, कुछ एंगल चेंज हो जाएगा. Consider this outer angle, this exterior angle. This is R2. So these are the formations. Now extend it so that we can clearly see the rays properly. This is our ray. This ray is consider CD. Now extend this line also. जो अगर undeviated रही होती तो वो ऐसे चल रही होती. We can observe that these two rays, मतलब ये जो बाहर वाली रे हमारी जो इस वाली रे को मैं सभी का नाम लिख देता हूं. I am writing all the name. These are incident ray. This ray is refracted ray. And the last one which is emerging out, it is emergent ray. Alright. So these are three rays. As this ray is deviated from its original path, finally it is deviated from its original path, this shift of ray is called lateral displacement. What is it?
लेटरल बगल में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट. All right, so this is what? This is lateral displacement. Now come to the theory part. We have to prove that there are some angles which are equal, or we can say the shift in the path of light on emerging from a refracting medium with parallel faces is called lateral displacement. This we are going to check what is lateral displacement, and then we will calculate the thickness of कि इसका maximum lateral displacement कितना हो सकता है. हम ये भी अभी आगे थ्योरी में प्रूव करेंगे. So using Snell's law for this particular interface, Snell's law for refraction at face PQ, sin I1 because it is incidence angle by sin R1 refraction angle, it is equals to mu2 by mu1. तो सेकंड वाले में किस में जा रहा है? ग्लास में, तो म्यू जी से डिनोट कर दिया और एयर वाले को म्यू ए से डिनोट कर दिया. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए म्यू जी. ऑलराइट, दिस इज अवर इक्वेशन 1. इसको ऐसे भी लिख लीजिए एक बार और फिर से, I1 sin R1. सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू, और यू कैन से एट ये कौन सा है, SR वाले सरफेस पे, SR, इट बिकम्स साइन I. देखो यहाँ पे जो ये वाली रे आई, ये इसने यहाँ इंसिडेंस एंगल कितना बनाया, I2 ना. इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल कितना हो गया, I2. सो साइन I2 बाई साइन R2 इट इज इक्वल्स टू, कैन बी रिटन एज म्यू जी बाई म्यू ए, क्योंकि जिसमें जा रहा है वो नीचे होना चाहिए ना, मतलब जिसमें से जा रहा है और जिसमें जा रहा है, यानी म्यू 2 में जाता है तो उसको ऊपर रखते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, म्यू ए बाई म्यू जी ना, म्यू ए बाई म्यू जी, ऊपर वाले में म्यू जी बाई म्यू ए, तो म्यू ए बाई म्यू जी. इसको हम ऐसे दे सकते हैं म्यू ए और यहाँ पे लिख लें जी. जिसमें जा रहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके थ्रू यानी इंसिडेंस जहाँ से हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. तो इस तरह से आता. तो ये हो गया, इसको इक्वेशन 2 लिख लो. बट according to principle of reversibility, principle of reversibility, we can say A mu G is equals to 1 upon G mu A लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे. सो फ्रॉम 1 and 2, इसको 3 लिख दें. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से दैट साइन I1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल, साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन I2 अपॉन साइन R2, it is equals to G mu A multiplied by A mu G, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा. सो वी कैन से साइन I1 बाई साइन, देखो साइन I1 साइन I2 और साइन R1 साइन R2, साइन I2 साइन R2 इट इज इक्वल्स टू 1. अब एक और चीज यहाँ पे, अब फिगर से एक चीज देख लेते हैं. ये लाइन और ये लाइन, चूंकि ये और ये आपस में पैरेलल है, ग्लास स्लैब है, तो ये और ये भी आपस में पैरेलल होगा. तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे अल्टरनेट एंगल है ना. तो R1 विल बी इक्वल्स टू I2, एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I2 लिख सकते हैं ना, as
R1 इज इक्वल्स टू I2, ये लिख सकते हैं ना फिगर से। PQ पैरेलल SR है इस कारण से। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे ये R1 हो गया ना एंगल, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से एक आ गया, ये दोनों कैंसिल होके साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन R2, है ना। और इट कुड बी ट्रू ओनली इफ I1 इज इक्वल्स टू R2, यानी ये ध्यान दीजिए, जिस एंगल से वो सबसे पहले इंसिडेंट हुई थी सेम उसी एंगल से वो सबसे लास्ट में इमर्ज करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूवमेंट जो हमको चाहिए था। सो वी कैन से, अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ये एंगल सेम हुआ, ये वाली रे ऐसे सीधे चली आई, ये वाली उसी एंगल से मुड़ के आई जिस एंगल से ये पहली वाली थी, यानी ये जो यहाँ मुड़ी, ये और ये रे आपस में पैरेलल हो गई, यही तो मतलब निकला ना। द इमर्जेंट रे CD विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AB, बट इट हैज बीन लेटरली डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। ये एंगल प्रूव करने का मतलब यही था, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ the value of lateral displacement, how much it will be displaced, this we are going to calculate here. So we can say the lateral shift is the perpendicular distance between the incident and emergent rays when light is incident obliquely on a refracting surface slab with parallel surfaces. So expression for lateral displacement, this we are going to derive here. Now firstly we have to consider a glass slab. So we can say consider a glass slab. Consider a ray, मैं वैसे ही बना दे रहा हूं थोड़ा जल्दी। कोई रे थी, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, और फिर उसके बाद दोबारा से एक बार रिफ्रैक्शन। ये मान लीजिए ये इसका ओरिजिनल पाथ रहा होगा, स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ये हमारी सबसे लास्ट इमर्जेंट रे हो गई, नाम दे देते हैं A, B, C, D, और उसके बाद ये हमारा नॉर्मल यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया F। और अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। ये थिकनेस को आप मान लीजिए स्मॉल t, हमने क्या माना, स्मॉल t थिक ग्लास स्लैब है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, C से एक परपेंडिकुलर डाला हमारी इंसिडेंट रे के एलोंगेशन पे, यानी इंसिडेंट रे को एलोंग किया तो ये रे बनी ना। अगर ये यहाँ गई होती, अगर ये ग्लास स्लैब ना रहा होता तो ऐसे जाती। मान लीजिए ये दूरी x है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी x है, यानी लेटरल शिफ्ट हमारा जो हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, इसको मैंने नाम x दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे ग्लास स्लैब को भी नाम दे दें P, Q, R, S, ठीक है। इफ इंसिडेंस एंगल इज I, हमने रिफ्रैक्शन एंगल माना R, ठीक है। ये कुछ एंगल्स हमने मान लिए, ये मैंने यहाँ C से E पे परपेंडिकुलर डाला है, देन दिस विल बी 90 डिग्री, है ना, होगा ही। तो इतना फॉर्मेशन हमने कर लिया। नाउ आई एम राइटिंग समथिंग रिलेटेड टू दिस ज्योमेट्री। वी वांट टू कैलकुलेट x, ठीक है। तो यहाँ हम 1 by 1 x हम निकालना चाहते हैं, तो ट्राइंगल कौन सा ले लें। हमने ट्राइंगल ले लिया, सबसे पहले कुछ चीज़ें
फ्रॉम ट्रायंगल बी ई सी, ये छोटा ट्रायंगल बी ई सी, ये एंगल अगर आर है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये एक लाइन आई और यहां से ये एक लाइन गई, इनके बीच का पूरा एंगल अगर ये वाला आई है तो अपोजिट एंगल यहां से यहां तक पूरा कितना होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक वाला पूरा आई होना चाहिए था। तो केवल ये छोटा वाला जो मैं डबल ये जो मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, केवल इतना एंगल कितना होगा, इतना एंगल होगा आई में से ये बगल वाला साइड एंगल घटा दें आर, आई माइनस आर एंगल ये वाला होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइन आई माइनस आर एंगल विल बी, चूंकि साइन आई माइनस आर हो गया तो सामने वाली डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सी ई अपॉन हाइपोटेनस बी सी, सी ई अपॉन बी सी लिख सकते हैं। सी ई मैंने कितना बताया, एक्स माना है ना लैटरल शिफ्ट को, सो सी ई अपॉन बी सी, और वी कैन से एक्स अपॉन बी सी, सो एक्स इज इक्वल्स टू बी सी साइन आई माइनस आर, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसी में हम आगे कुछ और चीज़ें प्लेस करेंगे, जैसे बी सी की वैल्यू, फॉर बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ट्रायंगल बी एफ सी कंसिडर किया, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल बी एफ सी, ठीक है। सो कॉस बी एफ सी में देखो बी एफ सी, बी सी चाहिए, ये लेंथ हमको नहीं पता लेकिन ये पता है, अगर एंगल ये वाला है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस, यानी बेस और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉस, इसलिए हम ले रहे हैं कॉस। तो कॉस आर इज इक्वल्स टू बेस बी एफ अपॉन हाइपोटेनस बी सी। सो बी एफ वही है जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है, इट इज टी, अपॉन बी सी कितना है, बी सी को तो बी सी ही रहना। सो बी सी इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर, इक्वेशन 2। नाउ एड इक्वेशन 1 2 मीन्स एड नहीं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, बी सी है ई नहीं है, ठीक है। सो वी विल गेट, सो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स इज इक्वल्स टू, बी सी की जगह रख रहे हैं, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ तक एक्सप्रेशन आ गया, अब साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर लिया, टी बाई कॉस आर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से कॉस आर को मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था ये बाहर वाला, तो हो गया टी साइन, देखिए टी बाहर ही रहने, साइन आई, ये कॉस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस आई साइन आर अपॉन ये हो जाएगा कॉस आर, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें अलग से साइड में रखूँगा, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखिए अगर इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल पहले हमारे इंटरफेस पे था तो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है ना। अगर इंसिडेंस एंगल आई हो और रिफ्रैक्शन एंगल आर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू, इसको अभी हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे साइन आर की जगह, ठीक है। तो इसको यूज़ करिए, ये कितना हो जाएगा साइन आई और नीचे बन जाएगा ये कॉस आर, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यू रख रहे हैं धीरे धीरे। एक चीज़ और यूज़ कर लेते हैं, देखिए ये दो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं इसलिए इसको साइड में लिख लेते हैं। पहला तो ये यूज़ करेंगे कहाँ पे, साइन आर में। कॉस आर के लिए हम क्या करने वाले हैं, कॉस आर को भी हम साइन आई के फॉर्म में लिखेंगे, साइन आर के फॉर्म में लिखेंगे फिर साइन आई बनाएंगे, क्योंकि साइन आर तो हमको पता चल जाएगा ना इससे, यानी कॉस आर को साइन आर बना लीजिए और साइन आर को तो साइन आर की जगह रखना है और दोनों को साइन आई के फॉर्म में रखना है। तो कॉस आर हो सकता है, कॉस थीटा होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लिख सकते हैं। अब इस साइन आर की जगह ये वाला फिर से रख देंगे, यानी इन दोनों में हमको साइन आई का फॉर्म पता चल जाएगा। तो मैं वही रख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू टी, देखिए क्या क्या रख रहे हैं, साइन आई इधर वाला यही रहेगा माइनस कॉस आई यही रहेगा, ठीक है।
और साइन आर की जगह साइन आई बाई म्यू रख देंगे। तो साइन आई बाई म्यू, म्यू डिनोमिनेटर में पहले से कॉस आर है उसको चेंज कर रहे हैं, तो साइन कॉस आर की जगह क्या लिखा जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो लिख देंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो साइन स्क्वायर आर इसकी जगह अब ये रख दें साइन आई बाई म्यू, तो साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ये हो गया। और ये पूरा रूट लगा ही हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर लिया और ये बाहर वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब इसके बाद x इज इक्वल्स टू थोड़ा सा सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या किया, म्यू स्क्वायर रूट में है ना, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर का फिर रूट बनेगा और बाहर केवल म्यू आएगा, वो म्यू इस म्यू को कट कर देगा, तो यानी म्यू अंदर केवल यहाँ पे बनेगा म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे वो बना ले रहे हैं टी रहने दें, साइन आई भी दोनों में देखो कॉमन है ना, साइन आई बाहर ले लेते हैं, देखो दोनों में कॉमन है, 1 माइनस कॉस आई अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर में ही यानी पावर 1/2 लिख दे। म्यू 1 बाई म्यू स्क्वायर कॉमन लिए तो म्यू स्क्वायर यहाँ ऊपर यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, और माइनस साइन स्क्वायर आई में नीचे से म्यू स्क्वायर हट गया है, तो साइन स्क्वायर आई ही रहेगा, और ये वाला म्यू तो इसके कॉमन लेने के कारण कट जाएगा, यानी 1 बाई म्यू स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन लिया था। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा ऐसा बन गया, टी साइन आई मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग। नाउ थिंक, अब जैसे जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, अगर साइन मतलब जो आई है, साइन आई की में हम ये देखना चाहते हैं कि लेटरल शिफ्ट सबसे ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एंगल आई हमारा सबसे ज्यादा, मतलब साइन आई हमारा सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है साइन आई की, साइन आई सबसे ज्यादा कब होगा, 1 पे होगा, साइन आई इज इक्वल्स टू 1। तो साइन आई इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कॉस आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों उल्टा चलता है, ठीक है। तो साइन आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, जब आई 90 की तरफ टेंड करेगा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, जब बड़ा इंसिडेंस एंगल क्या हो सकता है 90 डिग्री, तो सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ जब आई टेंड करेगा तो साइन आई 1 की तरफ टेंड करेगा और कॉस आई 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी इधर वाली, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, यानी टी साइन आई की तरफ x की वैल्यू हो जाएगी। फॉर आई टेंड्स टू 90 डिग्री क्या होने वाला है, साइन आई 1 बनेगा एंड कॉस आई 0 की तरफ टेंड होगा। सो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, x मैक्स विल बी इज इक्वल्स टू, यहां पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, t साइन और i कितना है 90 है ना, t साइन 90, सो इट इज इक्वल्स टू t जब i की 90 डिग्री की तरफ टेंड करे, यानी जब इंसिडेंस एंगल 90 रखेंगे तब। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बता रहा है, ये मैं यही साइड में लिख देता हूं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, the displacement of emergent ray cannot exceed, किससे ज्यादा नहीं हो सकती, cannot exceed t क्या था, thickness of the glass slab, exceed the thickness of the glass स्लैब। फिगर में देख लेते हैं, कह रहा है यहां पे कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कर दें तो सबसे ज्यादा लेटरल शिफ्ट कितनी हो सकती है, 90 डिग्री की, यानी मतलब ये थिकनेस टी हो सकती है, टी थिकनेस, यानी जितना मोटा ग्लास स्लैब है केवल उतना मोटा ये शिफ्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं शिफ्ट हो सकता। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मैक्सिमम यानी 90 डिग्री कर दें तो सबसे ज्यादा x की वैल्यू कितनी आ सकती है, t आ सकती है। यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया, और नॉर्मल जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये वाला था जो भी हमने निकाला, x इज इक्वल्स टू दिस। इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा जनरल लेटरल शिफ्ट है और ये हमारा एक स्पेशल केस है, नीचे वाला मैक्सिमम का केस है, ठीक है। तो ये हो गया लेटरल शिफ्ट। अब एक दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ समझ लीजिए, 2 पॉइंट्स हैं
कि जो लेटरल शिफ्ट है डिपेंड किस किस चीज पे करता है. सो फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, बिकॉज देखिए इस एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिए, टी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये टी है, देखिए टी पे डिपेंड कर रहा है. तो जब जैसे जैसे ग्लास स्लैब मोटा होगा वैसे वैसे ये जो लेटरल शिफ्ट है ये ज्यादा होता जाता है. पतले ग्लास स्लैब के लिए कम शिफ्ट होता है, मोटे ग्लास स्लैब के लिए इट इज बिकम लार्जर. वन मोर थिंग, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वी हैव सीन इट. जैसे जैसे हम आई बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ये मैक्सिमम की तरफ टेंड कर रहा था. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ाने पे लेटरल शिफ्ट बढ़ता है. द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है लेकिन उसमें भी डिनोमिनेटर में है, म्यू स्क्वायर रूट में है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इंक्रीज करता है. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लास स्लैब और ज़्यादा ही लेटरल शिफ्ट देगा. यानी ग्लास स्लैब का मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो क्राउन ग्लास का है कि वो फ्लिंट ग्लास का है. Alright, so this is all about the refraction through a rectangular glass slab. Next we will discuss about refraction through a combination of media in our next class. Alright, thank you.